موت کو یاد کرنا یہ بھی نیکی کا کام. اچھا اس کے علاوہ عورتیں صفائی بہت کرتی ہیں اس دن. عرفہ کے دن کی روح آئے گی, تھوڑا سا استقبال کریں, زندوں کا بھی استقبال کیا کیجیے, سال بھر صفائی رکھیے, صفائی آدھا ایمان. موم بتی بھی لگاتی ہیں. باقی آپ کسی دن اگر کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. موم بتی اگربتی جو آپ لگاتی ہیں کہ روح کو فائدہ پہنچے گا, تو دنیا سے جانے والوں کو موم بتی اگربتی سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے, ان کو آپ تلاوت کر کے بخشیے, کلمہ پڑھیے, درود پڑھیے, تب ان کو فائدہ بخشے گا. قبرستان میں تو اتنی اگربتی سب لڑکے لگائے رہتے ہیں, کیوں بھائی؟ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر یہ نیت ہے کہ وہاں اندھیرا ہے, موم بتی جلا دیں, روشنی ہوگی, اگربتی جلا دیں, جو آئیں گے وہ سونگیں گے, اچھا لگے گا. لیکن ابھی رحمت بھائی بتا رہے تھے اتنی اگربتی گاڑ دیتے ہیں, سانس کا مریض ہے تو سونگ کے مر جائے, خود قبرستان میں لینا پڑے. اتنی اگربتیاں ہوتی ہیں, ہے نا, مر جائے آدمی سانس کا مریض ہوتی, اتنی نہیں کرتے, ہے نا. یہ سب تجزیہ مال ہے. تو آپ اس کو اب تو وہ لائٹیں وغیرہ ہوتی, بلب ولب لگا رہتا ہے, بھرپور روشنی رہتی ہے, تو موم بتی کی کیا حاجت ہے نا. یہ غیر مسلمانہ مانا رویہ ہمیں جو ابس کام ہے بیکار وہ نہیں کرنے. پہلے سے روشنی میں موم بتی جلانا کیا مانا رکھتا ہے؟ ٹھیک, آپ اپنے روحوں کے لیے ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کیجیے. اور ابھی ہم نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ روحیں آ کے دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں گھروں کے, اور پتہ کیا کہتی ہیں, نہایت چیخ کے کہتی ہیں, بہت درد مندانہ لہجے میں کہتی ہیں کہ تم صدقہ کر کے میری مدد کرو. اسی لیے ہمارے وہاں رواج بھی کہ اس رات کسی غریب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. لیکن ابھی اتنا کھانا لوگ کھلا دیتے ہیں, غریب لوگ پھینک دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کی صبح مبارکہ شریف چلے جائیے اور کسی ایسے علاقے میں چلے جائیے دیکھیے کھانا پھینکا ہوا ملتا, تو آپ کچا کھانا صدقہ کر دیجیے. جیسے آپ چاول بنا کے مت دیجیے, 1 کلو چاول کسی غریب کو دے دیجیے, جب اسے ضرورت ہوگی بنا لے. ایسے کھانا ضائع نہیں ہو. ٹھیک, اسی طرح آپ دال دے دیجیے آدھا کلو, 1 کلو, تیل دے دیجیے, چینی دے دیجیے, ہے کہ نہیں بھائی؟ چائے تم لوگ پلا دو کسی غریب آدمی کو, کم بجٹ والے لوگوں کو, مطلب کماتے نہیں ہو, تو ٹھیک ہے یہ بات. تو یہ بات کلیئر ہے. اے بھیا ادھر سے بول رہے ہیں جی جی. یہ دیکھیے رکھنے کی حاجت نہیں ہے. ایک بات یہ کلیئر رکھیے, ثواب پیسہ نہیں دے دیں گے کسی کو تو ہمیں نہیں ملے گا. آپ نے ثواب جو پڑھا ہے نا, آپ کو بھی ثواب ملے گا, ہے نا, اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا. جو آپ بخش رہی ہیں, یعنی دنیا سے جانے والوں کی بھلائی سوچ رہی ہیں, اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اپنے لیے کیا رکھا, مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار پڑھا اور اس کو بخش دیا. نہیں بخش دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں بخشنے میں زیادہ بھلائی. جیسے آپ نے ایک پارا پڑھا, مان لیجیے میرا انتقال ہو, آپ نے ہم کو بخش دیا, تو ہمیں تو مل جائے گا ثواب, ساتھ میں آپ کو بھی مل جائے گا. اور آپ نہیں بخشیں گی تو صرف آپ کو ملے گا. سمپل سی بات ہے. تو فائدہ کس میں؟ 2 لوگ کو فائدہ پہنچے. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, وہ دونوں کو ثواب دیتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ بخش دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو آپ بخش دیجیے, جتنے نیک اعمال کیجیے, جو آپ کے گھر سے ایمان کے ساتھ لوگ رخصت ہوئے انہیں بخش دیجیے, اسی میں بہتری ہے. یہ تو بور ہو رہے ہیں شب برات رات سن کے. کیوں بھائی, کیوں جناب, یہ سب میں مزہ آتا نہیں تم کو. اس کو پہچان ہے, کیا نام ہے؟ ایان, ارحان. ایک جعفرہ بازار ایک محلہ ہے, وہاں ہر بچے کے نام کے لاش میں آن لگا رہتا ہے. جیسے شایان, ارحان, ذیشان. کیوں فرحان بھائی؟ فرحان بھائی گئے ہیں, آصف سر بھی آپ کے گئے ہیں. تو ہم لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں, تو پوچھتے ہیں بچوں سے تم کون والے آن ہو, تو بتاتا ہے ہم زی والے آن ہیں, مطلب ذیشان ہیں. تو ایسے بچے بتاتے ہیں وہاں. تو ٹھیک ہے, اور یہ سمجھ آ گیا, شب برات کلیئر ہے. کوئی سوال ہو تو بتائیے. حلوہ کیسے کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے اٹھائی کھا لیجیے, ہے نا, آرام سے کھائیے گا, بسم اللہ کر کے. بسم اللہ کر کے. اور کچھ شب برات کے تعلق سے آگے بڑھا جائے. شب برات کے جسٹ 15 دن بعد ایک اہم موقع آتا ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ رمضان میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے زنجیر سے, ہے نا, یعنی اس کے سب ہاتھ پہ باندھ دیے جاتے ہیں. وہ ہم کو بہکاتا نہیں ہے کہ نہیں؟ اب بھی صحیح بات ہے نا. پھر بھی ہم لوگ بدماشی کرتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا جو 1 مہینہ ہے وہ ہماری ٹریننگ کے لیے. کس لیے؟ ہاں, کہ دیکھو رمضان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. کیا نام ہے, رومان, تم نماز پڑھتے ہو رمضان میں؟
रमजान बहुत पढ़ते हो हैं? और आम दिन में इसको नहीं पढ़ते हो हैं? तो देखो रमजान में सब लोग नमाज पढ़ते हैं, तो रमजान में आप जो भी करते हैं आप सब कुछ भला ही काम करते हैं रमजान में। लेकिन रमजान इसलिए नहीं कि महीने भर भला काम किया जाए और ईद के दिन पिक्चर देख के सब खत्म, चैप्टर क्लोज। पिक्चर रिलीज होती ना ईद के दिन, जानती हो लोग कौन पिक्चर आ रही है सर? हमको ये बता रही है कुछ तो बोली हो तुमको मालूम है कौन सी पिक्चर आ रही है? अच्छा पिक्चर देखती हो, सच बताना। नहीं देखा, बहुत गंदी बात है। चलो ठीक है, तो ईद के दिन जाते हो ना पिक्चर देखने, क्या करते हो ईद के दिन? एकदम जमा घूमते हो। ईद कैसे मनाते हो? ईद में पैसा जोड़ती है, सऊदीया जाएंगी, बताए नहीं क्या करोगे सऊदी जाके? हज करोगी? गुड, क्या नाम है? चलो चला जाएगा साथ, ठीक है? दुआ करते हैं मेरे लिए। अनंता अपनी जो है पैसा जुटा रही है ईद में और जाएंगी हज करने इंशाल्लाह, ठीक है अनंता? बात ना करो। तो रमजान में बस करना इतना है कि जितनी नेकियों की आपको आदत पड़ी रहती है बस उसकी आदत को बचा लीजिए। यही आपका रमजान का होमवर्क है, समझ रही हैं? रमजान में हम लोग इज्तिमा होगा था, रमजान में हो 1 मार्च को अगले होगा, ठीक है? तो मिलेंगे रमजान में बीच में एक दिन। ये निहायत अजीम तरीन नेमत है रमजान हमारे लिए, कि देखो बहुत सारी बच्चियां कह रही थी ना हम सुबह नहीं उठते हैं, लेकिन रमजान में सब उठ जाती होंगी सेहरी खाने, भले रोजाना रहे सेहरी खाएंगे, है कि नहीं? उठ जाती हो ना सुबह, तो तुमको क्या करना है? जब रमजान उठते हो रुमान, सुबह उठते हो जी चाचा सुबह, तो जब रमजान में तुम्हारी आदत पड़ जाए ना सुबह उठने की, बस उसको बचा लेना है। थोड़ी सी मेहनत करोगे बच जाए, यानी उस टाइम उठो, अगरचे सेहरी नहीं खानी, अम्मी से कह दो कुछ बना दीजिए हम खा लें। तो आपको जो भी रमजान का आपका शेड्यूल है, ये हमारे लिए ट्रेनिंग सेशन होता है। रमजान मुसलमानों के लिए क्या है? ट्रेनिंग है, 1 महीना अच्छे काम करने की। देखो जो बंदा ऐशा नहीं पढ़ता वो तरावी पढ़ता है 20 रकात, है कि नहीं? कहाँ 4 रकात नहीं पढ़ता है। तो ये होता है कि हमें रमजान में ट्रेनिंग दी जाती है ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की। और ट्रेनिंग के बाद अगर कोई बंदा पता चला हमने हसन को सिखाया अच्छा लिखना, अब जब तक सिखाया तब तक लिख रहे थे, और जिस दिन छोड़ दिया वो गोजर की टांग बना रहे हैं, तो बताओ ट्रेनिंग कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। रमजान में आपका जो भी मामूल है, यानी कुरान पढ़ने का, सुबह सवेरे उठने का, खाने पीने वाला छोड़ देना। ये मत कहना अम्मा हम रमजान में इफ्तारी करें हमें पूरा साल चाहिए, हजरत कहीं ना, रोजा नहीं भी ना करे और रोजा इफ्तार खोले, तो ऐसा नहीं। खाने पीने वाला नहीं, जो नेक कामों की आपको आदत पड़ी है ना, जैसे हमारी बच्चियां जो हैं वो तहज्जुद पढ़ लेती हैं, सेहरी में उठती हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है। तो उस तहज्जुद की आदत को बचा लीजिए, है ना? आप नमाजों की बहुत सख्ती से पाबंद हो जाती हैं, तो उस आदत को बचा लीजिए। यही रमजान का कंक्लूजन होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है लअल्लकुम तत्तकून। क्या कहा है कुरान मजीद में? हमने रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। और हमारे वहाँ ईद ऐसे सेलिब्रेट की जाती है कि मतलब लोग बद परहेज हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं ना। भयानक पैमाने पे ये लड़के घूमते हैं, अपना ये सब बाल डिजाइन वाला कटवाए, ये डिजाइन वाला कटवा के घूमते हैं बच्चे, है कि नहीं? रोडों पे, सड़कों पे, पार्कों में जाइए, आपको जहां जाना हो जाइए, ना जायज काम मत कीजिए। जैसे रमजान में पिक्चर टीवी नहीं देखते हैं, घरों में टीवी होती है तो उस पर पर्दा पड़ जाता है। जैसे रमजान में आप माँ बाप से बदतमीजी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं लोग रमजान में, अरे रोजा। तो आपको आदत डलवाई जाती है कि आपको रमजान में जो आपने झूठ छोड़ा था, गाली देना छोड़ा था, बहुत जो भयानक आदमी होता है ना मोहल्ले का, वो भी कहता है रमजान है ना तो अब बताते तू, अब पे तो यही कहानी सेट कर देते, कहते हैं ना ऐसे लोग। तो उसको बस हैबिचुअल होना है उन चीजों का, यानी वो रमजान में जो छोड़ा था, रमजान बताने आता है कि आप चाहें तो बुराइयां छोड़ सकते हैं, आप अपनी मर्जी से बुराइयां करते हैं। हम अपनी भैया आप अपनी मर्जी से बुराइयां करते हैं, अपनी मर्जी से आप नमाजें छोड़ते हैं, अपनी मर्जी से झूठ बोलते हैं। हर चीज के पीछे शैतान का हाथ नहीं होता, है कि नहीं? आपके अंदर भी एक शैतान बैठा हुआ है, उसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो रमजान इसलिए आता है। और सबसे अहम तरीन बात, रमजान के रोजे जरूर रखिए। हमारे वहाँ ये बहुत बड़ी बुराई है
कि ये सब नौजवान हट्टे कट्टे लड़के हैं और रोजा नहीं रखते हैं, है कि नहीं? तो तुम लोग को रोजा जरूर रखना चाहिए। बच्चियां जो बालिग हैं, बड़ी हैं, 10 साल से ऊपर की, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो रोजा रखें। अगर कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है, बीमारी है, परेशानी है, तो वो क्या करें, बाद में उन रोजों की कज़ा करें। फर्ज रोजा अगर बिला वजह छोड़ दिया जाए तो रिवायत में आता है कि मान लीजिए किसी ने एक रोजा छोड़ दिया, आज मन नहीं कर रहा, फिर उसके बाद सारी जिंदगी रोजे से रहा, तब भी उसे एक रोजे का सवाब पूरा। तो अगर अल्लाह ना करे, आप लोग नेक लोग हैं, अल्लाह ना करे आपने जिंदगी में कभी ऐसा किया हो तो उससे तौबा कीजिए, लेकिन रमजान मुबारक के रोजे मत छोड़िएगा। जो आपका मामूल है, तरावी, हमारी माएँ बहनें अक्सर इससे पीछे रह जाती हैं। तरावी जिस तरह मर्दों के लिए जरूरी है, औरतों पे भी सुन्नत मौकेदार, आप लोग भी पढ़िए और आप लोग भी पढ़िए, है ना। और तरावी सिर्फ कुरान मुकम्मल होने तक नहीं है, पूरे महीने फरमाया गया चांद देखकर तरावी शुरू करो और चांद देखकर तरावी मुकम्मल करो। देखिए जिस दिन हम रोजा नहीं रहते, चांद रात रहती है, उस दिन भी तरावी पढ़ी जाती है। तो रमजान में आप क्या कीजिए, तरावी जो है, घड़ी देख रहे हैं बेटा, रमजान में आप क्या कीजिए कि तरावी भी जरूर पढ़िए, ठीक। तो हमारी माएँ बहनें, इसके अलावा अगर आपको कोई दुश्वारी परेशानी हो, कोई शरई मसाइल हो, तो आप हम लोगों से डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, है ना। और इंशाअल्लाह 15 फरवरी को आमदे रमजान पे एक सेमिनार भी होगा जिसमें रमजान गुजारने के एथिक्स आपको बताए जाएंगे MSI इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में। तो इंशाअल्लाह आप लोग को वहाँ इन्वाइट किया जाएगा। जो हमारी माएँ बहनें हदीस वाले में और उसमें शरीक थी, वहाँ पे आएंगी। मुफ्ती खालिद अय्यूब मिज़वाई साहब और शहर के उलमाए किराम सारे उसमें रहेंगे। आपकी रहनुमाई पूरी की जाएगी कि आपको रमजान गुजारना कैसे, ठीक। तो रमजान बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, ट्रेनिंग का टाइम है, और उससे जो भी आप हासिल करते हैं उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईद के दिन किसी के घर जाएं तो अब देखें, आपको रमजान में तरावी भी पढ़नी थी, अब तरावी नहीं पढ़नी, रात में आप गई कहीं मेहमानी में, ठीक है जनाब, अब इशा टाइम हो गया, मुझे नमाज पढ़ लेने दीजिए, आप नमाज पढ़ लीजिए, है ना। कहीं से थक के आए दिन भर घूम घाम के ईद के दिन, तो नमाज नहीं छोड़नी। 20 रकात आप पहले पढ़ते थे एक्स्ट्रा, है ना, लेकिन साल भर तो नहीं पढ़नी ना, आपको ट्रेनिंग दे दी गई कि अब आपकी नमाजें नहीं छूटनी। ईद के दिन उमूमन मस्जिदें खाली रहती है कि नहीं भाई, मस्जिदों में लोग नहीं आते। जहां रहिए आप घूमिए घामिए, रिश्तेदारों से मिलिए, बुरे काम के अलावा जो चाहिए कीजिए, और लेकिन नमाजें नहीं, है ना। इसके अलावा और भी जो बदमाशियां, ये पिक्चर टीवी देखना और दोस्तों के साथ उल्लड़बाजियां करना, ये सब गैर मुअज्जब, गैर मुस्लिमों के तरीके। जैसे उनके त्योहार होते हैं तो वो रोडों पे नाचते हैं और क्या क्या करते रहते हैं, दोस्तों के साथ उल्लड़बाजी करते रहते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ये सब काम हमें नहीं करना। बहुत संजीदगी के साथ शब बारात भी गुजारनी है और रमजान मुबारक भी गुजारना, ठीक है। और आप लोग इस बच्ची का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने शब बारात के बारे में याद दिलाया, वरना यकीन जानिए कि मेरे जहन में नहीं था। हम बहुत ज्यादा सच बोल रहे थे, मतलब ओरिजिनल वाला सच बोल रहे थे, है ना। सच वैसे ओरिजिनली होता है, लेकिन मेरे जहन में तो नहीं था। अब पता नहीं ये लोग बताते क्या करते, बता देते आसिफ भाई, लेकिन बच्ची ने याद दिलाया तो सारा सवाब उसको मिले, है कि नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? महविश। अब देखो, तुमने कहा, तुमने बता दिया, अब मेरे लिए दुआ कर देना जाके शब बारात में, ठीक है। यहीं कहीं रहती हो, यहीं पढ़ती हो इसी स्कूल में? किस क्लास में? 5th में पढ़ती हो? पहली बार देखा तुमने? बैठो।